على وظيفة سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي رب زدني وقل زدني میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسے مجلس سے بیٹھتے ہیں اللہ کے ماں فرشتے چاروں سے گئے اور آسمان دھکے کرتا تھا۔ مجلس چھوٹتے تو فرشتہ اعلان کرتا کہ جتنے مجلس میں بیٹھے اللہ تم سب کی کیا ہے مغفرت کر، اللہ نے سب کی کیا ہے مغفرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو ہے کہ کل قیامت میں حشر کے میدان میں جو ہے لوگ تفریح کریں گے اور خشک ٹیلوں پر نہ وہ شہدا ہوں گے نہ انبیاء، کہ جب تک یہ لوگ خشک رہیں گے، خشک ٹیلوں پر رہیں گے، لوگ حساب کتاب میں مصروف تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعریف فرمائی کہ نہ وہ شہدا ہوں گے نہ انبیاء۔ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے گھٹنے کے بل اٹھ کے پوچھا اللہ کے نبی کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندان سے، مختلف بستے سے محض اللہ کے دین کی فکر خاطر ایک جگہ جمع ہو، یعنی ہم میں سے اللہ ہم سب کے اندر ہے اس کا شمار نصیب۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ پاک نے ہم سب کو ایک محنت دی، وہ دعوت والی محنت دی، اور محنتوں سے دین زندگی میں آئے اور دین کے اندر کامیابی ہے، جس دین کے اندر جو ہے دونوں جہاں کی کامیابی، دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے، اور اتنی بڑی جب کامیابی ہے تو وہ دین ہمارے زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ جب زندگی میں دین آئے گا تو صفات آراستہ آئیں، اللہ کے نبی کا طریقہ آئیں، کیونکہ میرے بزرگوں دوستو صحابہ جو ہے بڑی اشرف المخلوق بنے، بہترین چیز بنے۔ صحابہ کے زندگی میں دین نہیں تھا، محنتیں نہیں تھی تو تحقیق بھی نہیں تھی، ہے نہیں کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم خود بولنے والے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے، کوئی چیز زندگی میں تقریب جو ہے قابل لحاظ نہیں تھی، لیکن جب اللہ کا دین زندگی میں آیا تو وہ دین ان کو اتنے صفات کے اوپر ڈالا اور اتنے اعمال کے اوپر جمایا اور اتنے محنتوں کے اوپر جمایا کہ اللہ کے نبی نے مثالیں بتائی کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند۔ کس کے مانند ہے؟ کیونکہ ستاروں کے مانند ہے، جو ان کے اگر ادنا صحابی کی جو اتباع کریں گا اللہ پاک جو ہے منزل تک پہنچائیں گے۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ کہ جو جنت ہے، لیکن ہم آئے اس سے جانا، اس میں ہر ایک کو پوچھیں کہ بھائی جائیں گے کہیں تو جنت میں جا، بولے وہ فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کو نہیں کہ جنت میں جانے والے اعمال تھوڑی ہو نہ ہو، لیکن جنت میں جانے کے ہر ایک کی تمنا۔ تو میرے بزرگوں دوستو اللہ پاک نے وہ محنت ہم کو دی، یہ صحابہ والی محنت تھی، جو کامیابی والی محنت تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، چلنا پھرنا، محنتیں کرنا، یہ سب ہماری زندگی بنانے کے لیے۔ کیونکہ میرے بزرگوں دوستو یہ دین ہم تک آیا، کیسے آیا؟ قربانی کے ذریعے سے آیا نہیں، دین ہم تک جو آیا یہ بزرگوں کی قربانی کے ذریعے سے آیا نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے نبیوں کا سلسلہ شروع رکھے نہیں، کہ پورے نبیوں کا سلسلہ شروع رکھے۔ اللہ نے سب سے پہلے بہترین جو مخلوق ہے، امت کے سب سے بڑے دائی ہے نا، کہ نبیوں سے کام لیں گے بس۔ اللہ نے ہم کو بتایا کہ میرے دین کا کام کوئی معمولی سے لوگ نہیں کرے، کہ جو ہے ہلکے پھلکے لوگوں نہیں کرے۔ سب سے پہلے بہترین جو لوگ تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جو معصوم تھے اور امت کے سب سے بڑے دائی تھے، اللہ نے سب سے پہلے ان سے اپنا تعارف کر کے بتایا لوگ، اور سب سے پہلے ان کا امتحان لے کے بتایا نہیں کہ نبیوں کا امتحان کیسا امتحان؟ معمولی امتحان نہیں تھا کہ محنتیں تھی، 900 سال محنتیں کرتے تھے، 800 سال محنتیں کرتے تھے، ہے نا، کہ نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھے اور اپنے دین کی محنت لے کے بتائے، جس سے معلوم پڑتا کہ جس دین کے واسطے کم سے کم جو ہے ہمارے جو ہے مثالوں کے اوپر بولتے نا کہ بس 1.25 لاکھ نبی آئے، 2 لاکھ نبی آئے، تو اس دین کے تعارف کے لیے اللہ نے سب سے پہلے نبیوں کی قربانی لے کے بتائی۔ نبی بدلتے گئے لیکن قربانیاں نہیں بدلی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر تکلیفیں اٹھائی نہیں اٹھائی، کہ بے شمار تکلیف اٹھائے، تمام نبیوں کی تکلیف ایک جگہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک جگہ، ویسے بہترین شخصیت جس کے صدقے میں پوری دنیا بنی، جس کے توفیل میں پوری دنیا بنی، زمین و آسمان بنا، 1.25 لاکھ نبی بنے، پورے قیامت تک آنے والے انسان، قیامت تک آنے والے دنیا کا وجود بنا، ویسی ہستی اور ویسے نبی کہ جو ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کو تک معاف کر، جس کے توفیل میں پوری دنیا کو بنا ہی نہیں بنا، تو ویسی شخصیت اللہ نے دین کی محنت لی۔ طائف کا سفر کرایا، طائف کے پتھر کھائے، تو پھر احمد سعدی نے واقعہ بتایا کتنا لمبا چوڑا واقعہ کہ طائف کے پتھر کھائے نہیں کھائے، آگے کیسی تکلیف تھی۔ طائف کا پہلا واقعہ ہے نا، کہ طرح طرح کی جو ہے تکلیفیں دی اور طرح طرح کی محنتیں کرے نہیں کرے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاتے تو میلے کچلے کپڑے پہن کے آئے۔ ایک صحابی بولتے کہ میں نے اپنے زندگی کے 3 دور دیکھے۔ سب سے پہلا دور تھا کہ جو ہے جہالت میں تھا،
अल्लाह के नबी वसल्लम को देखा, हज़रत मिर्ज़ाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो मैंने अल्लाह के नबी वसल्लम को देखा कि जो लोगों को दीन की बात सिखा रहे थे, समझा रहे थे, तो कोई उनके ऊपर मिट्टी डाल रहा था, कोई उनके ऊपर जो थूक रहा था, कोई उनके ऊपर गलाज़त डाल रहा था, है ना। ऐसा कब तक चला? दोपहर तक चला। जैसे हज़रत जी फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 घंटे खुद लगा के बताया नहीं, बस तो दोपहर तक वक्त चला। एक छोटी सी बच्ची आई ना, पानी का प्याला लेके, पानी की प्याला जो है बोले कि अपने हम आपके अचानक खत्म हो जाए ऐसे फिक्र नहीं कर, कि हम खुद बोलने वाले साथी हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों को वैसी शख्सियत ने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी कि सहाबा का सिलसिला चला, सहाबा ने पूरी दुनिया में फैलकर मेहनतें करें, 1.25 लाख सहाबा का जो है मजमा था। आज लोग बोलते हैं जो हज के लिए उमरा के लिए, तो बोलते कि 10 या 12 हज़ार जो है मदीने में खबरें मिलती, बाकी सहाबा कहाँ गए? पूरी दुनिया में चले फिरे, पूरी दुनिया में चले। हालांकि किसी सहाबी के 10 बेटे थे तो 10 मुल्कों में उनकी खबरें मिलती, आगे कोई गुजरात में मिलता, कोई केरला में, यानी पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में सहाबा ने अपने खबरों को बनाया। और ये तमन्ना करते थे कि जो है अल्लाह हमारी खबर अल्लाह के रास्ते में, ये तमन्ना, ये फिक्रें थी कि हम हो और अल्लाह के दीन के अंदर कमी आए। आज हजारों मुसलमान हैं, आज मेहनतें नहीं है तो कोई रंज नहीं हम, लेकिन सहाबा के ज़माने में सहाबा अफसोस में रहते थे कि भाई हम हैं और अल्लाह के दीन के अंदर कमी आए, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने आप को झोंकते थे, अपने आप को पेश करते थे और अपने आप को कुर्बानियों के लिए आमादा करते थे। अल्लाह के नबी के दौर के अंदर, सहाबा के दौर के अंदर दीन जो है हर तबके में था, मेहनतें हर तबके में थी, यकीन हर तबके में था नहीं था, बच्चों में था, औरतों में था, मर्दों में था। शहादत का वलवला हर एक के अंदर, कि शहादत की तमन्ना हर एक के अंदर थी कि हमारी खबरें बने, हमारी जिंदगी खत्म हो और अल्लाह का दिन जो है बुलंद हो। ये सब तमन्ना थी दोस्तों। हाँ, इसलिए वो कुर्बानियां देकर ये दिन हम तक आया। बुजुर्गान दिन ने कुर्बानियां दी, पूरी दुनिया में चले फिरे, अपनी खबरें कहाँ थे और कहाँ बनाए नहीं बनाए। तो ये हम सब के लिए सबक है, दीन बगैर कुर्बानी के नहीं आया। अल्लाह ने हम सब के हाथों में ये दावत की मेहनत, और आज हम क्या कर रहे, इस मेहनत को हमारे दिल से जहन चाहे वैसे चला रहे, और नहीं आया समझ में तो उसे छोड़ दे। अल्लाह हम सबसे पूछेंगे, हम सबकी पकड़ होंगी कि अल्लाह ने समझ दी थी, अकल दी थी, सलाहियत दी थी, सारी चीजें दी, हमने कहाँ लगाए? सलाहियतें दी थी, दुनिया के ऊपर सलाहियतें लग रही है ना, अकल लग रही दुनिया के ऊपर लग रही, जानो माल लग रहा दुनिया के ऊपर लग रहा, दीन के ऊपर क्या लग रहा? हम खुद गौर करें। तो मेरे दोस्तों, आज हम अगर मेहनतें करेंगे, उम्मत पे चलेंगे फिरेंगे, है ना, कि बस्ती में चलेंगे फिरेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कौन से हालात में शिकार है नहीं, तमाम हजार मसाइब से घिरी हुई। आज हम किसी की शादी की 3 दिन की तशकील करते, वो बोलते अगले हफ्ते भी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। क्यों? क्योंकि हम खुद देखे काम करने वाला साथी मसाइल में गिरा है, तो उम्मत का क्या हाल है? उम्मत को हम खुद देख, पूरे जो उम्मत जो दूर है, इसलिए बोलते कि हम जो है पूरे आलम में चले फिरे, पूरे महल्ले में चले फिरे, फिक्रे करेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि इस उम्मत का क्या हाल है। कि उम्मत की बेदीनी को दूर करने का क्या करना पड़ेगा? उम्मत के मुज़ाकरे नहीं करना पड़ेगा कि भाई फलाने इलाके में बेदीनी है, फलाने इलाके में बेदीनी है। हमारे जो महाराष्ट्र के जिम्मेदार फरमाते थे कि उम्मत की बेदीनी उम्मत में चलने से दूर होगी, उम्मत के बोलने से दूर नहीं होगी। उम्मत में चलना पड़ेगा, मेहनतें करना पड़ेगा, अपने आप को लगाना पड़ेगा, तो हमको मालूम पड़ेगा कि फलाना बंदा की 50 साल की उम्र हुई, 60 साल की उम्र हुई, फिर 20 साल की उम्र हुई, तो उसको गुस्ल के फराइज मालूम, तो नमाज के मसाइल कहाँ से मालूम? उनको सोचना पड़ेगा, है ना। आज कई लोग जो है जिहाद के जो है इस्तेमाल में आते, वक्त लगाते, तो मालूम पड़ता है कि उस दिन गुस्ल, तो गुस्ल के फराइज उसको मालूम। हम सब फिरने वाले साथी, हमको मालूम है कि लोग कैसी हालत में, कैसी हालत में जिंदगी गुजार, है ना। गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, बल्कि इबादत के साथ गुनाह को कर, ये इबादत है। तो मेरे उस उम्मत के अंदर चलना पड़ेगा, मेहनतें करके अपने अल्लाह के दीन की जो मेहनत है ये लोगों तक पहुंचाना। इसलिए किसी कुर्बानी, ये हम सब की कुर्बान, है ना। जब अल्लाह हमको कामयाब कर, जिस तरह साहबा को कामयाब करेंगे, कि साहबा जो है मुट्ठी भर थे, तो एक साहबी पूरी दुनिया का बादशाह था, नहीं थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी जो जिंदगी कैसी थी कि बोले कि ऊँट चराने नहीं आते थे, बकरियां चराने नहीं आते। हम फजल अमल में उनका वाक़या सुनते, क्योंकि वो खाला याकूब के बोलते थे, तो जो बकरियां चराने नहीं आता तो क्या जो है आगे काम करेंगे। तो खुद बोलते कि मैं जो है ये चीजें नहीं कर सकता था, अल्लाह ने दीन के लिए मुझे इतनी इज्जत दी, मैं पूरे दुनिया के बादशाह खलीफा बना नहीं बना, हाँ कि पूरे कौम दुनिया के ऊपर हुकूमत करके बताया। कि अंग्रेज ने किताब के अंदर लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 या 2.5 साल अगर दुनिया में रहते थे तो दुनिया से कुफ्र का निशान मिट जाता। किसने लिखा? अंग्रेज ने। क्यों? वैसे मेहनत थी वो, है ना, कि वैसा जो ईमान था, वैसे अमाल था। आज हमारे मेहनत अमाल जो है बदल गए, आज हमारे नमाजों में कमी आई, आज मेहनतों में कमी आई। इसलिए क्या होगा कि हमारे जो है मस्जिद वीरान हो गए और बाजार क्या आबाद हो। क्यों आबाद हो गए? कि हम लोगों ने आबाद किया, कि हमारा लगाव, हमारी मेहनतें जब मस्जिद से होंगी तो मस्जिदों से हमारे फैसले होंगे। सहाबा जो है ना, मस्जिदों से लगाव था नहीं था, क्योंकि मस्जिदों से लगाव था। सहाबा हाफिज भी बने तो कहाँ बने? मस्जिद में बने।
हल्के लगते थे। कारी भी बने मस्जिद में बने, आलिम भी बने मस्जिद में बने, हर वक्त हर चीज जो है मस्जिद से निस्बत थी, तो अल्लाह ने जो है मस्जिद से उनके फैसले को हल किया और हर चीज को अल्लाह से मांगने का यकीन आया। यकीन था नहीं साहब कि हमारी जिंदगी का अच्छा बुरा होना ये अल्लाह ही के हाथ में, तो यकीन था। जिस तरह आज हम मोबाइल पे बात करके फौरन काम करते ना, उसी तरह जो है आमाल के जरिए से अल्लाह से फौरन फैसले उतारते थे। आज उसमें हर चीज वही है, नमाज भी वही है, रकाते भी वही है, आगे सारी चीजें करने की वही है, सुन्नत वाजिबात वो है, लेकिन बदल गया क्या? हमारे यकीन बदल। क्या बोल रहे हो? हमारे यकीन बदल। तो मेरे दोस्तों, इस मेहनत को जिंदगी में लाने के लिए अल्लाह के रास्ते में चलना पड़े, अल्लाह के दीन की मेहनतों को करना पड़े, है ना। जितनी मेहनतें होंगी चलत फिरोगी, दीन हमारे जिंदगी में आएगी। दीन क्या है? ये हमारे जिंदगी में आएगा। आज हम दीन से दूर है दोस्तों, है ना, कि हमने जो है वही दीन को समझे जो हमने 50 साल बड़े दीन को समझे। वो दीन हमारे जिंदगी में लाने के लिए कुर्बानी, है ना, कि कुर्बानियां देंगे, वो दीन हमारी जिंदगी में है। हमारे बुजुर्ग फरमाते कि जो है साहबा के जिंदगी में दीन था और 100% दीन था। कैसा दीन था? कि 100% चलता फिरता कुरान था साहब, कि 100% दीन था, 100% फिक्रें थी। तो तब भी जो है दीन को फैलाने के लिए पूरे घर को छोड़े, दर को छोड़े, सारे चीजों को छोड़े कि मालूम था कि वापस नहीं आने का। क्या था? मालूम था कि वापस नहीं आने का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे मौता के वक्त में जो है थोड़ी देर रुके थे। हम सबको मालूम है कितनी देर रुके थे। जुमा की नमाज अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ सकूं, ताकि अल्लाह के नबी ने तीन चीजें बयान फरमाई थी कि अगर ये शहीद हो जाए जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि ये शहीद हो गया जो है खास जो है मोहम्मद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 3 शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसको चाहे आमिर बना ले। तो एक यहूदी सुन रहा था तो क्या बोला कि भाई ये 3 जरूर मारे जाएंगे। क्यों? ये अंबिया के कलाम का एक मतलब था, तो उसको यकीन था कि हमारे नबी की बात हक है। उस वक्त में हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14 साल अल्लाह की दीन की मेहनत करके आए। कितने साल? हाँ, तो पूछे कि अल्लाह के नबी ने 14 साल की कारगुजारी आए तो फौरन बोले कि जाफर जो है आमिर रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। और क्या हो गए? जाके शहीद हो ही नहीं हुए। अब्दुल्लाह इब्न रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि वो जुमा के लिए रुक गए, अल्लाह के नबी ने खुशामदीद दी उनके से, बल्कि वही दे सुनाई कि भाई आपके रुकने से आपके साथ ये मामला हो। कि कुछ रिवायतों में आता 500 साल, कुछ रिवायतों में दूसरी चीजें आते, तो ये मामले हो थोड़ी देर। कौन से साहबी थे? आगे जो बड़े साहबी थे। तो मेरे को दोस्तों कि आज हम रुके हुए, और हजरत मौलाना साहब फरमाते कि दाई का रुकना ये उम्मत के बेदीने का सबसे बड़ा सबब है ना, और चलना फिरना उम्मत की बेदीने का दूर है। जिसकी मिसाल चलते हुए पानी की बताते थे कि गहरा पानी, चलता हुआ पानी क्या है? पाक रहता, बहता हुआ पानी पाक रहता। लोग गुस्ल भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, वजू भी कर सकते हैं, कुछ उलमा किराम से ना। और ठहरा हुआ पानी ये गहन रहता, इससे कुछ नहीं कर सकते। ठहरे हुए पानी में बदबू आज वक्त तौर के ऊपर साफ दिखेगा, पाक दिखेगा, 15 दिन 20 दिन के बाद उसमें बदबू आने लगी। उसी तरह दाई जिस दिन ठहरेगा उस दिन से उसके अंदर जो है बेदीनी की बदबू आई, है ना। और सजाई जब तक चलेगा फिरेगा, मेहनतें करेगा, उसके अंदर हिदायत की खुशबू आई, और उसकी खुशबू की वजह से अल्लाह उम्मत को रोशन करेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरतीबें हैं। ये हमारे सामने बहुत बड़ा इज्तिमा है, और वो इज्तिमा कैसे होगा? ये हमारे बोलने बताने सुर इज्तिमा होगा, हमारे चलने फिरने से होगा। हमारे देहातों में, हमारे सेंटर में, हमारे जिले में हम जब चलेंगे फिरेंगे, 4-4 महीने की जमातें लेंगे, तो हम जो है हर एक घर से एक आदमी को निकालेंगे। तो आज हमारा जिला कितना बड़ा, तो लोग